Good morning student, welcome to biology class. Now students, today in this lecture we will discuss a very important topic, that is pest resistant plant. Okay, now in the previous lecture we have seen how the insect resistant plants are made. We all know biotechnology, it has a vast application in agriculture. Okay, and different techniques are made to in order to prevent the entry of microbes, because these microbes, these pathogens, they cause a great damage to the agricultural land. So how it has made it possible? So last lecture mein we have discussed about the different varieties, BT cotton mechanism we have seen. Now let's see how pest resistant plants are produced. Now, in order to minimize the use of pest, that is a chemical, the pest resistant plants are prepared. And this pest resistant plant are prepared by a technique, that is RNA. Okay, so RNA is your ribonucleotide, okay, ribonucleic acid, and I stand for interference. So here we will study about the RNA interference technique. How this technique, how this mechanism help to prevent the entry of pest. Okay. Now let's see. Now for this, the usage we use a nematode. एक nematode है, that is Mildew-Gyn incognitia. This nematode is it cause a damage to the tobacco plant. और tobacco plant में किस part को damage करता है? Roots को ये damage करता है. Okay, so in order to make tobacco resistant to this nematode, okay, so a technique is used, that is RNA interference technique. Now this RNA interference technique is used in all eukaryotes. जितनी भी eukaryotes होते हैं, okay, उसमें ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है. दिस इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विच हैज बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. ओके, सो ये एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है. ओके, एंड इट हेल्प्स द प्लांट्स टू बी इन्फेक्टेड बाय द नेमाटोड. नाउ लेट्स सी हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क. नाउ एज द नेम सजेस्ट, RNA इंटरफियरेंस. ओके, सो इंटरफियरेंस मीन्स इंटरफियर करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना या किसी के साथ बाइंड करके उसके एक्शन को रोक देना, इंटरफियर कर देना उसके एक्शन. अब ये जो नेमाटोड है Mildew-Gyn, ओके, Mildew-Gyn incognitia, दिस नेमाटोड how it affect the plant. The question is that how it affects the plants. Now this cause great damage by infecting the roots of the plant, that is tobacco plant. अब ये कैसे करेगा? दैट मीन्स कि इट इज प्रोड्यूसिंग सम जीन, कोई ये जीन प्रोड्यूस करता है जो कि वो जो है वो डैमेज कॉज करता है. वो जीन वो प्रोटीन बनाता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ द प्लांट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको उस प्रोटीन को बनने से रोकना है. द थिंग इज दैट वी हैव टू स्टॉप दैट प्रोटीन, ओके, मेकिंग ऑफ दैट प्रोटीन. सो उस प्रोटीन, now we all have studied about the central dogma process, okay, that is your this replication, transcription and translation, how it proceeds. Okay, so jo transcription hai, in that a messenger RNA is made and this messenger RNA finally made a protein, okay, and that protein is responsible for the damage. Okay, now we have to stop that protein. Okay, we have to stop the formation of that protein. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो मैसेंजर RNA है, जो हमारा मैसेंजर RNA बना, हमको उसको एक्सप्रेस करने से रोकना होगा, हमको उसको साइलेंस कर देना होगा. ओके, साइलेंसिंग ऑफ RNA इसको हम बोलते हैं. साइलेंस कर देना मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसको स्टॉप कर देना है, उसके एक्सप्रेशन को हमें स्टॉप कर देना है, जिससे कि वो प्रोटीन ना बना सके जो कि प्रोटीन रूट्स को या टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा या इफेक्ट करेगा. ओके, वो प्रोटीन हमें बनाने से रोकना है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो RNA है, RNA को अगर हम
RNA यू ऑल नो, जो मैसेंजर RNA बनता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन दैट इज सिंगल स्ट्रैंडर्ड। अगर हम उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री बना के उसको हम डबल स्टैंडर्ड कर दें, सो इन दैट वे क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन जो है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर जाएगा और फिर वो आगे चल के प्रोटीन नहीं बना पाएगा। प्रोटीन बनने से हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA इंट्रोड्यूस करना होगा प्लांट। ठीक है, प्लांट में हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA इंट्रोड्यूस करना होगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ये इसके लिए फिर हमको वेक्टर चाहिए। तो जो वेक्टर यूज होगा दैट इज एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को हम यूज करेंगे विच विल एक्ट एज अ वेक्टर। ओके, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री DNA को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA क्या करेगा, ये मैसेंजर RNA बनाएगा डबल स्टैंडर्ड। ओके, और ये जो है, ये जो मैसेंजर RNA डबल स्टैंडर्ड बनेगा, ओके, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन डबल स्टैंडर्ड जो है RNA बनेगा। ओके, अब इसके पास जो है दो स्ट्रैंड्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, एक होगा सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड्स। ओके, सेंस एंड एंटीसेंस। ओके, क्योंकि ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या करेंगे, ये क्योंकि जो DNA हमने इंट्रोड्यूस किया वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जो निमैटोड है, जो वो मैसेंजर RNA बनाया उसने, ओके, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये DNA हमने इंट्रोड्यूस किया है। क्यों, क्योंकि हमको उस मैसेंजर RNA का जो एक्सप्रेशन है वो हमें ब्लॉक करना है। तो हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया जिसने डबल स्टैंडर्ड RNA बनाया, हैविंग बोथ सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये क्या करेंगे, ये जो है हमारा जो निमैटोड का जो मैसेंजर RNA जो उसने बनाया उसके साथ ये बाइंड करके, ठीक है, जो मैसेंजर RNA था निमैटोड का उसके साथ ये बाइंड करके ये डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा और इसके एक्सप्रेशन को ये स्टॉप कर देगा। जो इसका एक्सप्रेशन है दैट विल बी स्टॉप। इसका एक्सप्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, द प्रोटीन विच इज कॉजिंग दिस डिजीज। ओके, जो रूट्स को अफेक्ट कर रहा था जो प्रोटीन, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा और हमारा जो प्लांट है दैट विल बी सेव्ड और दैट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द इन्फेक्शन। सो दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क, जिसको हमने नाम दिया है RNA इंटरफेरेंस। इसको साइलेंसिंग ऑफ RNA भी बोलते हैं, बिकॉज हेयर वी आर साइलेंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ मैसेंजर RNA विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ निमैटोड जीन। ओके, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने DNA इंट्रोड्यूस किया। यस, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमने लिया इसका सोर्स क्या है। नाउ सोर्स क्या हो सकता है, वायरस जिसके जीनोम में RNA, पहला सोर्स ये हो सकता है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, द फर्स्ट इज दैट इज वायरस हैविंग RNA एज अ जीन। ठीक है, जिसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो RNA। या फिर दूसरा सोर्स हो सकता है ट्रांसपोसोम्स, जिनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। दूसरा हो सकता है दिस इज ऑल्सो नोन एज जंपिंग। सो ये सोर्सेज हैं जिनसे हम जो है we will introduce the DNA, okay, in order to make the double stranded RNA that will bind with the RNA of the nematode and it will neutralize its effects. So this is all for today. I hope you have understood. Thank you everyone.